तो जिंदगी सर्वोत्तम है। गुड मॉर्निंग टू रिस्पेक्टेड डायरेक्टर सर, प्रिंसिपल मैम, टीचर्स, पेरेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। Welcome you all this special occasion. Today I am going to say to be the most memorable day in our life. I, Rajni Singh, with my co-host Ruby, are here to extend our warm cordial welcome to great celebration of this Vigyan Kid Play School Annual Event Day. My teacher of this great school, I am extremely privileged to have this opportunity to address you all at this important moment for celebrating our 5th annual day. This is an honor for me to deliver my welcome speech for annual function. Let's come together to celebrate the talent and achievements of our students on our annual day. Your support and encouragement mean the world to us. Please join us for this remarkable event. It's extremely proud and emotional moment for us. All of this very special day as our school is going to complete one fantastic year. I would like to wholeheartedly invite you all the our school annual function. We have always here to sing from our elders. They may grow up to achieve great success, name and fame as well as high human value. But on the other hand, we wish them to be good human beings also and make this world a better place to live in. School life is the best, make the most of it. And today I can relate to it. Now I fully understand why the friends we have made at a school say to nothing less than family. Especially arrangement have been made to make this special day memorable. As we have our parents as well, it will be twice the fun with us particular day. There are different kinds act, singing, dancing, display, especially prepared by the student. For our parents and teachers, we have arranged various fun events to make this day memorable for them as well. Some games are also planned where a student can participate. The annual day helps the teacher to evaluate students on not only how much marks they get, but also how well they interact in other environments. This also allows students to improve their communication and public speaking skills. By performing on the annual day, students grow more confident, which would help them later. This day is an important day in our school. It is the day for parents to cheer their little ones. Most importantly, it is the day of enjoyment for children. To work some extra mile with a smile in the moment task. The temple is real, knowledge is named with compassionate and de-sharing individual through a holistical quality education. The dance we play school has always endeared to the important virtue to children, which is a very important and indispensable parameter in their holistical development. Today, we are celebrating the 10th year of this institution.
मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को हमारे विद्यालय के 5वें वार्षिक समारोह में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। यह हमारे लिए अत्यंत गर्व और हर्ष का विषय है कि आज हमारा विद्यालय शिक्षा, संस्कार और संस्कृति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ रहा है। पिछले 10 वर्षों में हमारे विद्यालय ने न केवल शैक्षिक क्षेत्र में बल्कि हमारे खेल, संस्कृति, गतिविधियों और नैतिक मूल्यों के विकास में भी उल्लेखनीय प्रगति की है। यह सफलता हमारे मेहनती विद्यार्थियों, समर्पित शिक्षकों और सहयोगी अभिभावकों के बिना संभव नहीं थी। आज के इस समारोह में हमारे छात्र छात्राएं अपने प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। इसके नृत्य, नाटक और गीत हमें यह संदेश देते हैं कि शिक्षा केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं बल्कि व्यक्तित्व के समन्वित विकास का माध्यम है। मैं अपने सभी विद्यार्थियों से कहना चाहती हूँ कि मेहनत, अनुशासन और आत्मविश्वास ही सफलता की कुंजी है। अपने सपनों को साकार करने के लिए हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। अंत में मैं सभी शिक्षकों, अभिभावकों और विद्यार्थियों को इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हृदय से अनुरोध करती हूँ। आइए हम सब मिलकर अपने विद्यालय की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने की कृपा करें। धन्यवाद। कि हम स्कूल के एम्प्लॉय की तरह कभी व्यवहार नहीं किए हैं। ये मैम में विश्वास नहीं रखती। उनका मानना है कि हम मिलकर स्कूल को आगे बढ़ाएं। उनकी तारीफ करते हैं तो वे बोलती हैं कि हम सब की परिचय और मेहनत का फल है कि यह स्कूल यहाँ तक पहुँचा है। उनकी सादगी और उनका सच्चा मन, उनकी उदारता और एकल विश्वास कि हम सब पर भरोसा रखते हैं। किसी कारणवश हमारे किसी भी टीचर के साथ कोई भी समस्या आती है तो बेझिझक शेयर करते हैं और वह हमारी प्रॉब्लम को सुनती हैं और समझती हैं और उस समय वह एक प्रिंसिपल की तरह नहीं बल्कि एक परिवार के सदस्य की तरह हमारा साथ देती हैं और समाधान निकालती हैं ताकि ना तो स्कूल को नुकसान हो और ना हमें। और किसी कारण हमारी मैम औरों से हटकर है। वह अपनी इसी व्यवहार से हम सबका अपनी ओर आकर्षित करती हैं। थैंक यू मैम फॉर द लवली स्पीच फॉर द स्कूल। A huge round of applause. Now, our first performance will start the Sri Ganesh Vandana groups. Aditya Raj, Rudrans, Chitrans Karan, Naitik Prasad, Riyan Sathar, Amritanand, Trishab, Arav, Aditya Singh, Piyush, Veeranand, Dipanshu, Divyanshu, Abhiraj, Divyansh Vardhan, Swarna Saha एवं जानवी। ये सारा समंदर छोड़े अपना किनारा,
अद्भुत रूप ये काया भारी महिमा बड़ी है दर्शन की महिमा बड़ी है दर्शन की जो भी इच्छा हो मन की
My name is Rishabh Kesri. I read in class 1. Our school annual function is a very special event. Every year we celebrate it with fun and joy. The whole school get ready for this big day. Our parents come. We practice song, dance and play for weeks. Our parents come to watch us perform. After the performance we get awards and certificate. Thank you everybody. Now Ananya from class NC, Upar Chanda Gol Gol.
सुबह सुबह शुरू हो गए पापा। कब छुटकारा मिलेगा इनसे पता नहीं। बेटा, मेरे को चश्मा कहीं नहीं मिल रहा है, तू ही ढूंढ के दे दे ना। क्यों सुबह सुबह परेशान करते हो पापा? आप खुद ही ढूंढ लो ना। मेरा चश्मा यही तो रखा था, कहाँ गया? दिख नहीं रहा है, चश्मा कहाँ गया? बेटा, पापा, आपने नाक में दम करके रखा है, क्यों परेशान करते रहते हो? अपना चश्मा खुद संभाल के नहीं रख सकते? रोहन की मम्मी, पापा का चश्मा ढूंढ के देना दो। पापा जी का रोज का रामायण है, एक दिन का थोड़ी ना है। तुम ही ढूंढ कर दो, मैं भोजन बना रही हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। और हाँ, जल्दी ढूंढ कर दो, नहीं तो सामान इधर उधर कर देंगे, मेरा काम और भी बढ़ा देंगे। हे भगवान, तुम ही कुछ करो इनका। अपना चश्मा इधर उधर रखकर सबको परेशान करते रहते हो आप। पापा, ये सामने तो रखा है चश्मा, तुम सचमुच अंधे हो गए हो। ये लो। पापा पापा, ये गणित मुझे नहीं आ रहा है, आप कर दो ना पापा। बेटा, तू खुद ही कर ले, तू खुद करेगा तो ही सीखेगा, है ना? चल तू प्रयास कर, चल। हाँ पापा। हाँ, पापा जवाब नहीं दिया, जवाब नहीं दिया, जवाब। संभल कर, तुझे लगी तो नहीं ना बेटा? नहीं पापा, मुझे नहीं लगी, मैं ठीक हूँ। और कैसे हो यार, सब खैरियत तो है ना? हाँ यार, कट रही है जिंदगी जैसे तैसे। जैसे तैसे मतलब? पापा, आप काटना बंद करोगे प्लीज? क्या बताऊं यार, ऑफिस में बॉस का टेंशन और घर में ये पापा ने परेशान करके रखा है। दिन भर बस खांसते रहते हैं। इनकी छोटी चीजों का ख्याल हमें रखना पड़ता है। अरे लेकिन तूने अभी तक इस मुसीबत को घर पे पाल कर क्यों रखा है? मतलब? अरे मतलब साफ साफ है यार, मैंने तो अपनी मुसीबत मतलब अपने माता पिता को कब से घर से बाहर निकाल दिया। घर के बाहर मतलब? घर के बाहर मतलब वृद्धाश्रम में। अंकल, वृद्धाश्रम मतलब क्या होता है? बेटा रोहन, वृद्धाश्रम मतलब जहाँ बूढ़े लोगों को रखते हैं, जैसे कि तेरे दादाजी, तेरे पापा तेरे दादाजी से परेशान हैं, उन्हें वहाँ वृद्धाश्रम में छोड़कर आएंगे। मैंने भी अपने मम्मी पापा को वहीं रखा था। सही बात बताई यार तूने। ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई यार पहले? मैं भी अब ऐसा ही करता हूँ, पिताजी को वृद्धाश्रम छोड़ के आता हूँ, परेशान करके रखा ही उन्हें। अच्छा तो ठीक है यार, चलता हूँ क्योंकि ऑफिस भी जाना है। ठीक है यार, बाय, मिलते हैं। ओ जी, सुनते हो? टिफिन तैयार है। और हाँ, आप ऑफिस के लिए तैयार हो जाओ। बेटा रोहन, स्कूल का टाइम हो गया है, तू भी तैयार हो जा, अपना टिफिन भी ले लेना। रोहन की मम्मी, मेरा चश्मा कहाँ है? जरा ढूंढ के तो देना। अरे वही कहीं होगा, देख लो। बेटा रोहन, पापा का चश्मा ढूंढ के दो। पापा, आपका रोज का ड्रामा नहीं है। ये सामने ही तो रखा है चश्मा। पता नहीं पापा, आपसे कब छुटकारा मिलेगा। आप जल्दी जल्दी बूढ़े हो जाओ, मैं भी आपको वृद्धाश्रम में छोड़ के आऊंगा। रोहन,
ये क्या तरीका हो बड़ों से बात करने का? क्या तुम स्कूल में यही सब सीखते हो? स्कूल में नहीं पापा, मैं तो आपसे ही सीखूंगी। पापा, मेरे जरा से गिरने पर आपको कितनी टेंशन हो गई। ये टेंशन मतलब आपका प्यार ही है ना पापा। तो बचपन में आपके पापा भी आपको ऐसे ही प्यार करते होंगे ना। बेटा रोहन, माता पिता के साथ ऐसा व्यवहार बिल्कुल नहीं करना चाहिए। माता पिता तो धरती के भगवान होते हैं, भगवान। उनका हमें आदर करना चाहिए। दादाजी, आप भी तो मेरे पापा के पापा हो, फिर भी वो आपका आदर क्यों नहीं करते? मेरे से गलती हो गई। मैं आपको वृद्धाश्रम नहीं भेजूंगा पिताजी। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे उनका माँ-बाप था, उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। जन्मदाता है जो नाम जैसे मिला, हम कर जिनकी उंगली है जो चला। आगे भर बैठ के जिनके देखा जहाँ, ज्ञान जिनसे मिला, क्या बुरा क्या भला। इतने उपकार हैं क्या कहें, ये बताना आसान है। धरती पे उनका माँ-बाप था, उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे उनका माँ-बाप था, उस विधाता की पहचान है। और जब सुबह घर से निकलते हैं तो किसी की किताब, किसी की दवाई और किसी के खिलौने को पूरा करते हैं और भर भर के सपने पिता के होते हैं। क्लैपिंग फॉर आवर फादर्स। Now Dipanshu from class 1 is going to say मीठे बोल poem. Welcome on the stage with a big hand. पांसु शर्मा, मैं कक्षा 1 में पढ़ता हूँ। मीठे बोल कविता सुनाने वाला। मीठे बोल सभी को बांटे, आपस में या प्यार बढ़ाते। जब भी बोलो तो बस भया
नसीब होते हैं जो मम्मी डैडी के करीब होते हैं। Luego pocone me gubare ram grande peare kare nan areoni ni pine kuska jeo kujai dine eka ek baya eda chua ko pene apicham inko teke muni mujri dokar ko seni kiri ravi chunu pindugi ai eke kaya atme nai
शगों पे पत्ते गा रहे हैं, फूलों पे भंवरे गा रहे हैं, बगिया में तो फूलों पे हो रही है गुफ्तगू, जैसा फिल्मों में होता है, हो रहा है हूबहू। शगों पे पत्ते गा रहे हैं, फूलों पे भंवरे गा रहे हैं, बगिया में तो फूलों पे हो रही है गुफ्तगू, जैसा फिल्मों में होता है, हो रहा है हूबहू।
साड़ी में ये ठुमके लगा के तू जैसा फिल्मों में होता है तू ज़मीन पर इतना के जा रहा इतना के जा रहा Two little hands to clap, clap, clap. Two little legs go tap, tap, tap. Two little eyes open wide. One little head goes side to side, side to side, side to side. Two little hands to clap, clap, clap. Two little legs go tap, tap, tap. Two little eyes open wide. One little head goes side to side, side to side, side to side. मैं दहेज प्रथा के बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ। दहेज प्रथा भारतीय समाज की प्रमुख समस्याओं में से एक है। हर माता पिता के द्वारा बेटी को शादी के समय स्नेह उपहार दिए जाने की परंपरा रही है। विवाह के समय दिए जाने वाले इस उपहार को दहेज कहा जाता है। ससुराल पक्ष के लोग अब इस उपहार की सूची बनाकर रखने लगे हैं। उनकी मंशा तो यही होगी कि अच्छे से अच्छा, महंगे से महंगे उपहार उसे मिले। यह बात तो हर कोई जानता है कि लोभ और लालच का कोई अंत नहीं है। ससुराल पक्ष के मांगों ने दहेज को अपना अधिकार समझकर लड़की के माँ बाप समान अपनी मांग सूची पेश करने लगा और दावे करते हैं कि ये सब लड़की के लिए ले रहे हैं। संपन्न और शिक्षित परिवार में बेटी खुश रहेगी और सोचकर मजबूरी में अपनी क्षमता से बाहर जाकर लड़की के माँ बाप समान दहेज में सामान हटाते हैं। अनंत विस्तार वाले लालची प्रवृत्ति के लोग दहेज प्रथा को विकराल बना दिया है। भारतीय समाज में लंबे समय से चली आ रही कुरीतियों में से एक है विवाह। दहेज प्रथा दो दिलों और परिवार का मेल कराने वाले पवित्र बंधन को कलंकित कराने लग गई है। इस कारण दहेज प्रथा की समस्या मुंह फैलाने लगी है। संविधान ने